alkynes. So alkyne, basic introduction about alkyne would be that it has at least one triple bond, and the general formula for alkyne is CnH2n minus 2. है ना? So we can say hydrocarbon with at least one triple bond. Next लिखिएगा. See, next is method of preparation. Number one, from calcium carbide. From calcium carbide. First of all, what is calcium carbide and how to prepare it? So calcium carbonate it is heated in the presence of calcium oxide plus carbon dioxide, and when calcium oxide and carbon, these two are reacted, it will give you calcium carbide and carbon monoxide. Okay, this is how we prepare calcium carbide. This is calcium carbide. And when you hydrolyze it in the presence of water, I mean calcium carbide plus H2O, it will give you C2H2 plus calcium hydroxide. So this is basically carbon, triple bond carbon, one hydrogen, and here one hydrogen. So in this we can only prepare ethyne, not ethane, only used for preparation of ethyne. Next is 1, 2. From vicinal dihalide. What is vicinal dihalide? CH2 single bond CH2, and both of these carbon atom are having halogen. ठीक है, दोनों में क्या लगा हुआ है? Halogen लगा हुआ है. So first you react this with alcoholic KOH. तो यहाँ से आपके पास बीटा एलिमिनेशन होगा. वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर एंड वन हाइड्रोजन फ्रॉम हियर विल गो आउट. आपको क्या मिलेगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, एक हाइड्रोजन बच जाएगा, है ना? एक हाइड्रोजन निकल चुका है, एक हाइड्रोजन बच गया. इसके बाद यू ऐड अ इवन स्ट्रॉन्गर बेस. फॉर एग्जांपल NaNH2 इज यूज्ड, सोडियम अमाइड. नेक्स्ट स्टेप में अल्कोहलिक KOH डज नॉट वर्क, वी नीड अ स्ट्रॉन्गर बेस व्हिच इज NaNH2. फिर यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा और इस वाले कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा. यू विल हैव CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहाँ से हाइड्रोजन निकल गया. तो फर्स्ट स्टेप में this halogen and this hydrogen is removed. Second step में this halogen and this hydrogen is removed. And whenever beta elimination happens, we get one pi bond. तो एक में एक double bond, फिर उसके बाद triple bond. For example, if you have something like this, Br and Br. पहले स्टेप में alcoholic KOH, सेकंड स्टेप में सोडियम अमाइड. You will get, जहां पर आपके पास where you have the two bromines ना, those two carbon atoms will get a triple bond. Now we can also do something like this, chlorine and chlorine, and we can directly react this with NaNH2. ठीक है. Now since NaNH2 can remove from here, it can also remove from here. तो आप अगर NaNH2 ले लीजिए दो इक्विवेलेंट, है ना, then you will get like this a triple bond. These are the only two methods of preparation.
The next method of preparation, chemical, no, not next, the next thing that we have to study is chemical property. The first one is acidic character of terminal alkyne. What is the meaning of terminal alkyne? Triple bond C and then this should be bonded with H. You should have this fragment, है ना? For example, ऐसा होना चाहिए R C triple bond C and this at least one carbon atom should be having hydrogen. ठीक है? So if you have R C triple bond H C and then H and you react this with sodium, it will give you R C triple bond C negative Na positive. ठीक है? Now इसके बाद ये तो हो गया आपके पास if you have R C triple bond. ठीक है? For example, if you have H C triple bond C H, तो यहाँ पर ये वाला भी हाइड्रोजन एंड दिस हाइड्रोजन, बोथ ऑफ दीज हाइड्रोजन आर एसिडिक. So by the way, एक और चीज, here you will get half H2 gas, half mole of H2 gas. और यहाँ पर देखिए ध्यान से जरा, if you use sodium, ठीक है, तो क्या होगा, पहले स्टेप में you will get H C triple bond C negative Na positive. आपने फिर से इस्तेमाल कर दिया यहाँ पे सोडियम, then again this hydrogen will also be removed and replaced by sodium. So you will have Na positive, C triple bond C, ये negative and then Na positive. Make sense this one officially? यहाँ तक ठीक है? Both of these are what? Both of these hydrogens, ये भी हाइड्रोजन और ये भी हाइड्रोजन, दोनों एसिडिक है, that means these can be removed. Make sense? Now, अरे yes or no guys, कुछ नहीं समझ में आ रहा है क्या? कुछ हाँ ना, कुछ तो बोलो. यस सर। समझ में आ रहा तो ठीक है, नहीं समझ में आ रहा तो नहीं बोलिए, तो फिर आई विल एक्सप्लेन इट इवन मोर. और कुछ क्या नहीं समझ में आ रहा वो पूछेंगे आप लोगों से. नाउ टर्मिनल एल्केन, अच्छा हमने मिटा दिया ना, टर्मिनल एल्केन लिख लीजिएगा, ये क्या होता है. ठीक है, दिस इज टर्मिनल एल्केन. So why it is acidic? Why the hydrogen of any other hydrocarbon is not acidic? So it is acidic due to the hydrogen attached to sp hybridized carbon atom, which is more electronegative and can bear negative charge. आपसे पूछे जाए एसिडिक कैरेक्टर. Now, if you look at acidic character, for example, CH3, single bond CH3, CH2 double bond CH2, and CH triple bond CH. So here you have to look, this is alkane, this is alkene, this is alkyne. No? Alkene, alkene, alkyne. This is most electronegative sp hybridized, this is sp2, this is sp3, so this will be more acidic than this one and then this one. Similarly, मतलब alkyne, alkene और alkane में ऐसा कुछ होगा. If I only consider alkyne, then in that case R C triple bond C and then R C triple bond CH and H C triple bond CH. यहाँ पर अगर आप देखिए तो this is most acidic because it is having two acidic hydrogen. यहाँ पर this is more acidic and then this one is not acidic because it does not have any terminal alkyne.
इट डज नॉट हैव एनी टर्मिनल अल्काइन। मेक सेंस यहाँ तक? ये सुनो, यहाँ हाइड्रोजन ही नहीं है इसके पास। मेक सेंस ये सुनो, पीछे नहीं। अरे बोलो भैया। Yes, sir. दीज टू पॉइंट मेक सेंस ना? ठीक है। Yes, sir. नेक्स्ट द रिएक्शन इट विल शो इज एडिशन रिएक्शन। अब एडिशन रिएक्शन है तो इट इज गोइंग टू शो एडिशन रिएक्शन जस्ट लाइक जैसे एल्कीन शो करता है। ये पार्ट हम लोग देखेंगे। एडिशन ऑफ H2। एडिशन ऑफ H2 में फॉर एग्जांपल इफ यू हैव CH ट्रिपल बॉन्ड CH एंड आपने कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ PT PD और निकल एनीथिंग, तो फिर क्या होगा? CH डबल बॉन्ड CH। विल द रिएक्शन स्टॉप हियर? नो, इट विल नॉट स्टॉप हियर। वापस से आपके पास इसके बाद और H2 के साथ रिएक्शन करेगा, PD के साथ Na2 के लिए। CH2 है ना, तो इसका CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 है ना। नाउ ऐसे स्टेप वाइज रिएक्शन होगा, बट यू हैव टू राइट डायरेक्टली दिस प्रोडक्ट। ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, आपको सीधा लिखना है 3 कार्बन एटम, सिंपल। ठीक है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग। यहाँ पर बस ये है कि दिस पर्टिकुलर एल्काइन इट इज गोइंग टू यूज मोर हाइड्रोजन एज कंपेयर टू एल्कीन। एल्कीन 1 मोल यूज करेगा, एल्काइन आर गोइंग टू यूज 2 मोल। बिकॉज देखिए एक बार यहाँ पर लग रहेगा, डबल बॉन्ड होगा, फिर उसका सिंगल बॉन्ड करने के लिए 2 मोल लगेगा। ठीक है। इट इज गोइंग टू यूज ट्वाइस द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एज रिक्वायर्ड बाई एल्कीन। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो, इफ यू हैव ट्रिपल बॉन्ड एंड यू आर यूजिंग H2PD in BaSO4, ठीक है, and then in that case you are going to get something like this. This we saw in method of preparation of alkenes, है ना। ट्रिपल बॉन्ड है, H2 निकल PdPt in the presence of carbon or sulfur or barium sulfate you will get cis alkene, है ना। This reaction stops at alkene, but if you have only H2PD, ये सारी चीजें अगर नहीं है, then it will go to alkane, fine। If you have BaSO4 वगैरह तब ये alkene में रुक जाएगा, otherwise it is go to alkane। Make sense till here? Yes or no? Please tell me। Yes, sir. Moving on, B part, addition of halogen, CH triple bond CH, you add Br2 here, you will get CH double bond CH, both the carbon atom will get 1 bromine. The reaction will not stop here. If you still have bromine, this will again react, give you bromine, 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 and bromine. This Br2 it is reddish brown, and you will write alkyne decolorizes bromine water. Alkyne decolorizes bromine water। ठीक है। तो वेरी सिंपल रिएक्शन, सिर्फ आपको Br ऐड करते जाना एक पाई बॉन्ड तोड़ के, नथिंग एल्स। बी सी पार्ट है, ध्यान से देखिएगा।
एडिशन ऑफ हाइड्रोजन हाइलाइट, HX। क्या होना है यहाँ पे, देखिए जरा। CH3, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, बेसिकली आपको देखना है हियर द पाई बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, और एक कार्बन पॉजिटिव दूसरे पे नेगेटिव आएगा। यू कैन सी दैट यहाँ पर अगर पॉजिटिव चार्ज आया, देन दिस विल बी स्टेबलाइज्ड बाय दिस मिथाइल ग्रुप, because this methyl is going to have alpha hydrogen. How many? There will be 3 alpha hydrogen. These 3 alpha hydrogen can stabilize the positive charge. तो पॉजिटिव बनेगा यहाँ पर, और H और Br में H पे पॉजिटिव और Br पे नेगेटिव होगा, है ना। तो दिस Br नेगेटिव इट इज गोइंग टू अटैक ऑन दिस कार्बन एटम व्हिच इज पॉजिटिव। मेक सेंस? यस नो प्लीज टेल मी। ठीक है, तो आपके पास क्या बनेगा, CH3 कार्बन Br डबल बॉन्ड, एंड दिस कार्बन विल गेट द हाइड्रोजन CH2। अगेन आपके पास HBr, एक और बार याद करेगा। Again, this carbon will be more stable because it is having these 3 alpha hydrogen. So once again, this carbon will get the Br. This will get the hydrogen. तो यहाँ पर Br, and this is also Br. When one carbon atom it is going to have two of the same group, then this is known as gem dihalide. In general, in this particular case, it is going to be called as gem dibromide. If you add HBr, get PH, and this carbon atom will get the two Brs. Here the positive charge will be more stable because it can do resonance with the benzene ring. तो जहां पर ज्यादा स्टेबल पॉजिटिव बन रहा है वहां पर पॉजिटिव डालिए, एंड देन यू ऐड Br, है ना। अगर HCl है तो Cl। एक बार देखिए, बड़े आगे। मेक सेंस? yes or no, please tell me। Yes, sir. क्या हम डाइंग है? जैनब, डू यू नो दैट सनसाइन जेमिनाई, Yes, sir. जेमिनाई में क्या होता है, व्हाट इज द सनसाइन, दिखता कैसा है वो? ट्विंस ना। Yes, sir. Two वैसे ही है same ना। concept. हाँ, टू सेम थिंग। तो जेम डाइहलाइड, मेक सेंस। वही जेमिनल से Yes. आया है। दिस जेम जो है ना वो आया जेमिनल से, जेमिनल। जेमिनल इज बेसिकली विच इज जेमिनी, जेमिनी टाइप का। तो जेमिनी किसी लैंग्वेज में ट्विन का मतलब होता होगा, जेमिनी में भी। ठीक है, तो ऐसे ही है ना, ट्विंस कैसे होगा, मतलब एक ही जगह से दो चीजें निकल रही हैं, तो इट इज गोइंग टू बी टू ऑफ द सेम थिंग्स आल्सो, है ना। तो दिस इज गोइंग टू बी जेम डाइहलाइड। मेक Yes. सेंस। Yes. अगला जो है ना, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सी के बाद डी लिखिए। एडिशन ऑफ वाटर। इन एडिशन ऑफ वाटर व्हाट हैपेंस, प्लीज सी। CH3 कार्बन ट्रिपल बॉन्ड CH। The reagent that we use here, it is HgSO4 in the presence of water and H2SO4। करना क्या है आपको, यहाँ सुनिए। इन वाटर वी हैव H एंड OH। H is positive, OH is negative। मेक सेंस? ये सुनो प्लीज में। खाया ना। Yes, sir. फाइन, एंड हियर द पॉजिटिव विल बी मोर स्टेबल। ठीक है, तो देखिए आई एम राइटिंग समथिंग। ये आंसर लिखने के लिए आई विल गिव यू द मैकेनिज्म लेटर ऑन, बट सी क्या करना है। CH3 कार्बन सिंगल बॉन्ड CH3, है ना। इसको दो हाइड्रोजन मिल गया, इसको क्या मिल जाएगा, दो OH मिल जाएगा।
मेक सेंस, यस नो प्लीज टेल मी। हाँ या ना बताएं। जैसे दो Br मिला ना, वैसे ही दो OH मिल जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव करके। आ रही बात समझ में नहीं आ रही है? यस और नो गाइस, दिस विल गेट 2OH। OH कैसे लिखने का एक मकसद है वो बताने के लिए। मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, जैसे Br मिला वैसे ही नेगेटिव वाला इसके पास जाएगा, पॉजिटिव के पास जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ पर आ जाएगा, नेगेटिव होगा फिर। जैसे पाई बॉन्ड टूटेगा तो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएगा, तो दैट पॉजिटिव कम्स हियर। तो दिस नेगेटिव विल गेन द पॉजिटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब दिस इसको क्या बोला जाता है? जेम डाइऑल, है ना, बिकॉज सेम कार्बन एटम इट इज हैविंग टू OH OH, है ना, तो जेम डाइऑल बोला जाता है। व्हेनेवर यू गेट टू OH ऑन द सेम कार्बन, व्हाट डिड आई से? व्हाट डिड आई से गाइस? Whenever you get two OH on the same carbon, two OH on the same carbon, you will have to remove water. It is very unstable. और आपको क्या निकालना पड़ेगा यहाँ से? पानी। How will you remove पानी? Yes or no, please tell me. H2O, make sense, yes or no? अरे हाँ या ना बोलते नहीं, क्या मिलेगा फिर इसके बाद? CH3, कार्बन पे डबल बॉन्ड O एंड CH3। ऐसे तो आप प्रोडक्ट बना सकते हैं, ठीक है ना। जहां पर पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है वहां पे डबल बॉन्ड O लगा दो। मेक सेंस, yes or no, please tell me. This is the end product, how you have to make it. अरे हाँ या ना बोलिए तो। मेक सेंस। Yes, sir. देखिए, जैसे H, रिएक्शन का मैकेनिज्म हम बताएंगे। H, C ट्रिपल बॉन्ड C H, द सेम रिएजेंट। वेयर शुड आई पुट डबल बॉन्ड O, वन या टू? वेयर शुड आई पुट द डबल बॉन्ड O, वन और टू? एनीवेयर, बिकॉज बोथ आर सेम, है ना। बोथ आर सेम, यस और नो? तो कहीं भी लगा दीजिए आप डबल बॉन्ड O। H, C डबल बॉन्ड O, जहां पर डबल बॉन्ड O उसके बगल वाले पे क्या कर देना है आपको? दो हाइड्रोजन और ऐड कर दिए, तो CH हो जाएगा। मेक सेंस, यस और नो? Yes, sir. अगर आपके पास है PH, C ट्रिपल बॉन्ड C एंड देन CH, वेयर इज पॉजिटिव चार्ज मोर स्टेबल, वन और टू? Where is the positive charge more stable, one or two? One. 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 Because of resonance. तो PH, C पे डबल बॉन्ड O कर देना है आपको, एंड देन यहाँ पे CH3। मेक सेंस, yes or no, please tell me. Yes, sir. Similarly, if you have, let us suppose like this, where the positive charge is more stable, one or two? Two. Two. तो CH3, this carbon will get two hydrogen more, ना। एक था पहले तो CH3 हुआ, जीरो था तो CH2 हो जाएगा। C double bond O and then PH. Understood how to make the product? Yes or no, please tell me. Yes, sir. Next, let us see what is actually happening here, है ना। That is also important, वहां से भी सवाल आ सकता है आपके लिए। So CH3, let us suppose we are having CH3, single bond carbon, triple bond CH. HgSO4, H2SO4, इतना भी दे दे तो चल जाएगा, है ना। उससे भी हम सस्ता लिख देते हैं, ठीक है ना। ऑल द रिएजेंट्स आई हैव रिटन। इफ यू गेट Hg2 प्लस एंड H प्लस, यही सेम रिएक्शन करना है आपको, ठीक है। Now what will happen? Water will add. How water is going to add like this? It is going to add like this. ये इसमें जुड़ेगा, ये इसमें जुड़ेगा पहले तो। You'll get CH3 and then carbon, single bond. You will get OH. Pi bond will break because दो आपके पास एटम्स अटैच हो रहे हैं, तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड से क्या हो जाएगा? डबल बॉन्ड। और यहाँ पे हो जाएगा CH2। This carbon got OH, this carbon got hydrogen. After this, something happens which is known as tautomerism. What happens? This pi bond, this hydrogen, it is highly delta positive. और यहाँ पर आपके पास क्या है? pi bond है। So what is going to happen? This is going to shift here, and this bond is going to shift here. और आपको क्या मिलेगा? ध्यान से देखते रहिए। CH3 as it is, carbon will have a double bond with O. अब ऑक्सीजन के पास हाइड्रोजन बचा नहीं। यहाँ पर आपके पास pi bond टूट चुका है, तो सिंगल बॉन्ड, दिस कार्बन इज गेटिंग द हाइड्रोजन, so it is going to be CH3. द सेम प्रोडक्ट, ये दोनों पीछे में ये जो बना था बिल्कुल वही बना है ना। डज दिस मेक सेंस, yes or no?
Yes, sir. So these are the main reactions, and this particular reaction is also known as Kucherov reaction. And next we have some other type of reaction. For example, polymerization में दो reaction है. E part is polymerization. In polymerization, we have two types of polymerization: linear and then we have cyclic. ठीक है, linear. One part is linear. Linear में सुनिएगा जरा. If you have something like this, N CH triple bond CH. This is my alkene. Sorry, this is my alkyne. I have to polymerize it. क्या करना है इसको? पॉलीमर बनाना है. तो पॉलीमर में क्या होगा ना, दिस पर्टिकुलर यूनिट इज गोइंग टू बी जॉइंड बाय अदर यूनिट्स. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. सही है, हाँ या ना? Yes, sir. दिस विल बी मल्टीपल टाइम्स. तो वो कैसे हो सकता है? इट इज गोइंग टू बी ओनली लाइक दिस ना, कि ये वाला कार्बन जो किसी के साथ बॉन्ड बना ले, इसके पास एक हाइड्रोजन तो है, अब इसको डबल बॉन्ड करना पड़ेगा. देन सी एच, देन सिंगल बॉन्ड सी एच, देन डबल बॉन्ड सी एच, देन सिंगल बॉन्ड सी एच, देन डबल बॉन्ड सी एच, एंड सो ऑन. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. ठीक है. तो अब यहाँ पर ये देखिए आपके पास दिस. अब इस पर्टिकुलर ये पॉलीमर को ना कैसे शो किया जाएगा? तो इसमें सी एच बॉन्ड, सी एच जो है ना वो रिपीट हो रहा है लाइक दिस. सी एच डबल बॉन्ड सी एच का एन. मेक सेंस? यस और नो प्लीज टेल मी. Yes, sir. दूसरी चीज आपसे सवाल क्या होगा? मोनोमर बनाने का सवाल होगा, है ना? तो मोनोमर बनाने के लिए क्या कीजिए? पॉलीमर दिया रहेगा, मोनोमर करना होगा आपको. मोनोमर बनाने के लिए वॉट एवर द रिपीटिंग यूनिट इज देयर, रिपीटिंग यूनिट प्लस एक पाई बॉन्ड लगा देना है आपको. जो भी रिपीटिंग यूनिट है ना उस पर एक पाई बॉन्ड लगा दीजिए. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पॉलीमर है और इसका मोनोमर बताना है. जैसे पॉलीमर तो अभी जैसे ये वाला था, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और यही वाला एन टाइम्स रिपीट कर रहा है. तो इसका मोनोमर क्या होगा? जो रिपीटिंग यूनिट है उसको बनाइए, सी एच डबल बॉन्ड सी एच, और उस पर एक ट्रिपल बॉन्ड लगा दीजिए, तो ये मोनोमर हो जाएगा इसका. मेक सेंस? आ रही बात समझ में? हाँ या ना? गाइस, मेक सेंस? ये सुनो. Yes. नहीं आ रहा है ना? फॉर एग्जाम्पल इफ यू हैव समथिंग लाइक दिस. सी डबल बॉन्ड सी एच एन टाइम्स. तो जो रिपीटिंग यूनिट है, आप वो रिपीटिंग यूनिट लिखिए सी, यहाँ पे डबल का ट्रिपल कर दीजिए सी एच, और यहाँ पर सी एच. प्रोपाइन. मेक सेंस? कैसे प्लीज टेल मी. जो रिपीटिंग यूनिट है उसको लिखा हमने, एक और पाई बॉन्ड बढ़ा दिया उसमें. मेक सेंस? Yes, sir. और एक साइक्लिक पॉलीमराइजेशन है. दैट रिएक्शन यू हैव साइक्लिक. नहीं देखा तो नहीं होगा हम लोगों ने. सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच,
in the presence of red hot Fe tube almost 600-500 डिग्री सेल्सियस रहता है, approximately 873 Kelvin. This will become benzene. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इट इज कॉन्फर्मेशन, अभी पढ़ा देते हैं आप लोग को. एंड आइसोमेरिज्म में ज्योमेट्रिकल लिया था हमने या नहीं लिया था? गिव मी सेकंड गाइस. रिंग चेन टॉटोमेरिज्म पढ़ा दिया था आप लोग को. ओके, ज्योमेट्रिकल वी हैव नॉट सीन आई गेस, फिर भी देख लेते हैं एक बार. ठीक है, वी हैव नॉट सीन ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड कॉन्फर्मेशंस. ठीक है, ये दोनों पार्ट देख लेते हैं फिर. ध्यान से सुनिएगा. आई हैव टू शेयर अ डिफरेंट स्क्रीन. जस्ट गिव मी अ सेकंड. कैन यू सी द स्क्रीन गाइस? Yes, sir. जस्ट गिव मी अ सेकंड. कैन यू सी दिस मॉडल? Yes, sir. ठीक है. Now please see, this is ethane. The gray ones are the carbon atoms. और जो बाकी चीजें हैं ना, all of these are hydrogens. The green and the blue one are only there for मतलब आसानी के लिए to check. मतलब we are going to focus on the green and the blue one. बाकी सारे हाइड्रोजन सेम है, किसी दो को भी हम लोग पकड़ सकते थे. मेक सेंस है? सुनो प्लीज मी. Yes, sir. ठीक है, ध्यान सुनते रहिएगा. बिकॉज वी हैव अ सिंगल बॉन्ड, देन सिंगल बॉन्ड के अराउंड जो रोटेशन है ना, रोटेशन अलाउड होता है. तो लेट मी रोटेट इट फॉर एग्जाम्पल. इसको पहले अच्छे से हम एडजस्ट कर लेते हैं. Now you can see that both of these hydrogens, for example, the blue and the green one, they are far away from each other. Yes or no? Yes, sir. Can you see the rotation? है ना? देखिए एक बार हम यहाँ से ऐसे रोटेट करके आपको दिखा रहे हैं. दिस सिंगल बॉन्ड इज गोइंग टू मूव. मेक सेंस? yes or no? आ रहा समझ में? Yes, What is sir. happening? Fine. So this rotation is allowed. Now each and every rotation, it is a conformation. इसी को conformation बोलते हैं. That these are stereoisomers. The arrangement of, see, each, if you look at the arrangement, where the blue atom was present right now and where the blue atom is present, let's suppose right now, both of these arrangements are different. Yes or no? Please tell me. Yes, sir. But both of these arrangements are different. Both of these arrangements, मतलब 3D space में the atoms का arrangement वो अलग हो रहा है. But these are interconvertible. Both of these. Like from here, I can go back to that particular arrangement. इस arrangement में वापस हम जा सकते हैं. Then again, I can move to this arrangement. So all of these are known as conformation. The interconvertible stereoisomers which are interconvertible, एक दूसरे से वो क्या कर सकते हैं, आप इनको इंटरकन्वर्ट कर सकते हैं. तो these are what stereoisomers which are interconvertible. इन्हीं को बोलते हैं conformations. क्या बोलते हैं? बोलिए जरा, what do we call this?
we call this Conformations. conformations, है ना? We call this conformation. And why it is happening? It is happening because rotation along the sigma bond it is allowed, and because of this rotation, there are different arrangements that we get. Make sense? Yes or no? Please tell me. Yes, sir. अब यहाँ पर आपके पास एक तो चीज ये, दूसरी चीज ये, हाँ, देर आर वेरियस वेज इन विच वी कैन शो द कॉन्फॉर्मर्स. एक तो आपको यहीं से हम दिखा सकते हैं, लाइक दिस. एक काम करते हैं, छोड़िए. लेट मी नाउ, आई हैव एक्सप्लेन्ड यू. इसमें और जरूरत पड़ेगी तो वापस आएंगे इधर, बट आई एम गोइंग टू राइट अ फ्यू थिंग्स, है ना? द टॉपिक इज कॉन्फॉर्मेशंस इन एल्केन. Why it happens? Since rotation along sigma bond is allowed, this results in different spatial arrangement of atoms in space. Such spatial arrangements of atoms which can be changed by rotation along C single bond C are called conformers या rotamers या conformation. ठीक है. Another thing is that alkanes have infinite conformers. For example, ओरिजिनल स्ट्रक्चर से आपने अगर 1 डिग्री भी रोटेट कर दिया ना, इट इज गोइंग टू बी न्यू अरेंजमेंट. हाफ आल्सो इज गोइंग टू बी न्यू अरेंजमेंट. 0.25 also is going to be new arrangement. 0.1 is also going to be new arrangement. 0.01 is also going to be a new arrangement. Even if you rotate very little, ठीक है, तो कितना लिटिल, तो इन्फाइनाइट कॉन्फर्मेशन बन जाएंगे सर, है ना? इफ यू कैन थोड़ा सा भी आपने अलग किया, इट इज गोइंग टू बी a न्यू कॉन्फर्म. तो इन्फाइनाइट कॉन्फर्मर्स होते हैं. सबसे पहले वी हैव टू सी द कॉन्फर्मेशन ऑफ ओनली टू मॉलिक्यूल, इथेन एंड ब्यूटेन. तो कॉन्फर्मर्स ऑफ इथेन, फर्स्ट ऑफ ऑल, conformers of ethane. So there are two ways in which we can show these conformations. एक को कहा जाता है सॉहर्स प्रोजेक्शन और दूसरे को कहा जाता है न्यूमैन. So how do we show in सॉहर्स?
Sawhorse projection. In Sawhorse projection, you first of all make a line. This particular slant line, एक जो slant line बनेगा, this slant line it represents the bond between first carbon and the last carbon. दो कार्बन है ना, उन दोनों के बीच का बॉन्ड बता रहा है. इथेन में दो कार्बन है. Now you put the hydrogens. तो आपने ऐसे पुट किया हाइड्रोजन को. So also is here like this. Hydrogen, 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 hydrogen and hydrogen. ठीक है. इसमें भी हम क्या करते हैं? Let me put this as blue, blue, and this hydrogen as green. So you can see that अगर हम दिखाएं आपको उस मॉडल में, अरे give me a second guys. ऐसा कुछ है ना? Make sense? Yes, sir. Yes, है sir. ना? And you can see that all the hydrogen atoms, I mean जो पहले front वाले ना, they are eclipsing the back hydrogen. Yes or no? They are acting as like an eclipse. Make sense? Yes or no? नहीं लग रहा है ऐसा eclipse कर रहा है? हाँ जी बताएं. eclipse टाइप का नहीं है. You know what is eclipse ना? The blue one is hiding the green one. क्या ख्याल है? Yes, sir. राइट. तो इस तरह के कॉन्फर्मेशन को कहा जाता है eclipse कॉन्फर्मेशन. ठीक है. अब अगर eclipse में ही देखें जरा आप, यू सी द डिस्टेंस बिटवीन हाइड्रोजन, ब्लू एंड ग्रीन हाइड्रोजन के बीच में आपने डिस्टेंस देख लिया यहाँ पे कितना है? ये सुनो, देख लिया एक बार? अरे हाँ या ना बोलते चले. मेक Yes, सेंस. sir. इतना ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. आप लोग देखना कैसे. अब उसके बाद देखिए. अब ये डिस्टेंस देखो, विच इज लार्जर? अभी इन दोनों हाइड्रोजन में ज्यादा डिस्टेंस है या पहले ज्यादा डिस्टेंस था? Now it has large distance. नाउ इट इज हैविंग मोर डिस्टेंस, है ना? तो इस केस में आपके पास बोथ दी हाइड्रोजन आर एटम्स आर नियर बाय ईच अदर, दैट्स व्हाई देयर विल बी हैविंग मोर रिपल्शन. इक्लिप्स में कैसे होंगे? सामने सामने नजदीक होंगे, नियर बाय. दैट इज व्हाई देयर विल बी मोर रिपल्शन. And this is going to be higher energy, less stable, and will have higher energy. दूसरा केस है जिसको कहा जाता है स्टैगर्ड. Which is basically this. अब जो है दोनों हाइड्रोजन में बहुत दूर हो गए. दिस इज नोन एज स्टैगर्ड, which is far, so less repulsion, more stable, and lower energy. एक और कॉन्फर्मेशन होती है स्टैगर्ड और एक्लिप्स के बीच की, इसको कहा जाता है स्क्यू. तो उसमें ना मतलब एट दिस पॉइंट यू कैन सी दैट. अच्छा एक थोड़ी सी चीज हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनते रहिएगा जरा.
देखिएगा, ग्रीन वन, उसके बाद बॉन्ड है, और उसके बाद यहाँ पर आपके पास ब्लू वन, ऐसा ही तो है, यस और नो? इन दिस एक्लिप्स, इन दिस स्टैगर्ड फॉर्म, ये स्टैगर्ड वाला है। कैन यू सी द स्क्रीन? दिस इज द ग्रीन वन। ग्रीन कर दे क्या? कहाँ है ग्रीन? कहाँ से कलर चाहिए? हाँ, ये ग्रीन वाला और ये ब्लू वाला। इट इज लाइक दिस ओनली ना, यस और नो? अरे भाई देखो तो ऐसा ही तो है। आप ग्रीन से हाँ, लेके ब्लू तक एक लकीर खींचे है ना, यू मेक अ लाइन। कौन से कलर? रेड से करते हैं, ठीक है। द एंगल विल बी 180, यस और नो? Yes, sir. करेक्ट। इस एंगल को डाइहेड्रल एंगल बोला जाता है, ठीक है, दिस नोन एज डाइहेड्रल एंगल। अनदर थिंग, अरे भाई ये चलता क्यों नहीं कभी कभी? अब इन दोनों के बीच में एंगल जीरो हो गया, आया ना? इफ आई वांट टू मेक द एंगल, हमने बना दिया ऐसे करके, ग्रीन, लो भैया ग्रीन यहाँ पर है, ठीक है, और ऐसे करके किसी कारण, और ब्लू कहाँ पर है? ब्लू भी यहाँ पर है। तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री का फर्क हो गया? 0 डिग्री हो गया। मेक सेंस है? सुनो, आ रही बात समझ में? नहीं आई Yes, बात समझ में? sir. आ रहा है ना? तो इन एक्लिप्स फॉर्म वी कैन ऑल्सो से दैट द डाइहेड्रल एंगल होता है, डाइहेड्रल एंगल। इन दिस इट इज 0 डिग्री, डाइहेड्रल एंगल इट इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब 0 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में बहुत सारे केसेस आ जाएंगे, उनको स्क्यू कहा जाता है। जैसे ये वाला है, ये स्क्यू हो जाएगा। इसका बेसिकली फंडा क्या है? दैट द डाइहेड्रल एंगल इट इज इक्वल टू 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री के बीच में कुछ भी हो जाए, ठीक है। कहीं कहीं किताबों में आपको दिया रहेगा 0 डिग्री से लेके 60 डिग्री में कुछ भी हो जाए, बिकॉज इन दिस केस देखिए हमने तो फर्क किया है दिस ब्लू हाइड्रोजन और ग्रीन हाइड्रोजन के बीच में, बट एक्चुअली में अगर देखा जाए हाइड्रोजन के बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन यही वाला है, विच इज गोइंग टू बी 60 डिग्री ओनली, ठीक है ना। तो वो भी हम आपको थोड़ा समझा देते हैं कि 60 डिग्री क्यों लिखा रहता है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू सी दिस केस, दिस इज वन हाइड्रोजन एंड दिस वन इज अनदर हाइड्रोजन। इन दोनों हाइड्रोजन के बीच में फर्क कितना है? 60 डिग्री। मेक सेंस है? सुनो, Yes. ये 60 60 60 60 60 60 होगा, तभी तो 360 हो जाएगा। मेक सेंस? ये सुनो, Yes, sir. सही है ना? तो 60 डिग्री, अब देखो 60 डिग्री दोनों के बीच में थोड़ा सा हमने बढ़ा दिया, ये चलेगा नहीं, एकदम पागल हो जाएगा ऐसे करेंगे तो। थोड़ा सा हमने रोटेट कर दिया तो इट इज गोइंग टू बी, ये पता नहीं क्या क्या दिखा रहा है। मे बी इट इज शोइंग द डायहेड्रल एंगल। खैर हटाइए, नॉट वेस्ट द टाइम। तो तीन चीजें आपको पता चल गई, इक्लिप्स, स्टैगर्ड एंड स्क्यू। इक्लिप्स डायहेड्रल एंगल इज 0, स्टैगर्ड में 180 डिग्री या फिर 60 डिग्री भी आप बोल सकते हैं इफ यू कंपेयर ओनली द हाइड्रोजन।
दिस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन कंपेयर कर लो तो 60 डिग्री हो जाएगा, है ना। इस केस में आप 60 डिग्री बोल सकते हैं। इफ यू कंपेयर द लार्जेस्ट, तो सबसे ज्यादा डिस्टेंस कितना है, 180 डिग्री का डिस्टेंस है सबसे ज्यादा। नेक्स्ट इज द न्यूमैन प्रोजेक्शन, बी पार्ट। न्यूमैन प्रोजेक्शन में अब क्या होना है, ध्यान से सुनिएगा। दिस इज द बैक कार्बन, उसको ऐसे बड़े से सर्कल से दिखाया जाता है। फ्रंट कार्बन को ऐसे डॉट से दिखाया जाता है। दिस फ्रंट कार्बन इज ऑल्सो गोइंग टू हैव 3 बॉन्ड्स, ठीक है। बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इथेन, तो दिस इज फर्स्ट कार्बन, दिस इज सेकंड कार्बन, 2 कार्बन हो गए। फर्स्ट कार्बन इज गोइंग टू हैव 3 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एंड तीसरा हाइड्रोजन। द बैक कार्बन इज ऑल्सो गोइंग टू हैव 3 हाइड्रोजन। इसको थोड़ा सा ऐसे दिखा दिया जाता है ना, वी कैन इक्लिप्स दिखाना है तो वी कैन नॉट शो लाइक दिस बिल्कुल, तो थोड़ा सा इक्लिप्स को ऐसे दिखा देते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक दिस, एंड दिस इज व्हाट वी नो कॉल इक्लिप्स। स्टैगर्ड कैसा होगा? बैक कार्बन का भी हाइड्रोजन नहीं बना रहे, आई एम मेकिंग द कार्बन हाइड्रोजन ऑफ द फ्रंट कार्बन, है ना। तो ये फ्रंट कार्बन के 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, और बैक कार्बन के स्टैगर्ड में बिल्कुल अपोजिट, अपोजिट एंड अपोजिट, ठीक है। तो दिस इज स्टैगर्ड। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी। Yes, sir. जरा एक सेकंड, आपके सिलेबस में ब्यूटेन का है या नहीं वो देख लेते हैं एक बार हम। स्कूल में ये सब पढ़ाया गया है अभी, या फिर ये सब नहीं पढ़ाया? ये सब पढ़ाया होगा वैसे तो। हैव यू गाइस बीन टॉट दीस थिंग्स, या फिर ये सब नहीं आ रहा है? Yes, sir, we got it. टॉट इट ना, ओके। ब्यूटेन पढ़ाए थे वो लोग ने, या फिर ब्यूटेन ने नहीं पढ़ाया? ब्यूटेन नहीं पढ़ाया गया। ब्यूटेन अगर है तो हम पढ़ा देते, नहीं तो फिर लेट अस लीव दैट। ओके, यू ओनली फॉर हैव फॉर इथेन, ये बस आपके लिए, staggered and eclipse, इथेन 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 एंड इथेन, ओके फाइन। ठीक है, तो इथेन तो हो गया। इसमें एक और चीज बस, वो एक वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ गया भाई? हियर वी हैव हायर एनर्जी एंड लोअर एनर्जी, इन दोनों के बीच में रिपल्शन होता है, उसकी वजह से स्ट्रेन आता है ना, दे आर रिपेलिंग ईच अदर, तो एक स्ट्रेन आता है, दैट इज नोन एज टॉर्शनल स्ट्रेन। तो यू कैन राइट अ पॉइंट कि जो टॉर्शनल स्ट्रेन होता है, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन, है ना, कॉन्फर्मेशन ऑफ इथेन ही है बस आपके इसमें। द रिपल्शन बिटवीन ग्रुप्स इज एके टॉर्शनल स्ट्रेन, ठीक है। तो दूसरा नाम क्या है? टॉर्शनल स्ट्रेन। दिस ऑल अबाउट दी कॉन्फर्मेशंस। नेक्स्ट चीज है ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ठीक है। बहुत आसान है, तुरंत हो जाएगा। जियोमेट्रिकल
आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म ऑफ एल्कीन। ठीक है, तो जीआई जो है दो, दो है, आपको दो पढ़ना है, सिस और ट्रांस। सिस फॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो सिस एंड ट्रांस उसको समझने से पहले थोड़ा ज्योमेट्रिकल आइसोमर हम लोग समझते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी वेदर समथिंग इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म और नॉट। और जब उसके बाद पहचान लेंगे इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, दैट इट कैन, आई मीन इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, उसके बाद हम लोग फिर बता पाएंगे कि वेदर इट इज सिस फॉर्म या फिर ट्रांसफॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल जीआई है या नहीं उसके बारे में सबसे पहले देखते हैं ना। तो जीआई के लिए आपको क्या क्या चाहिए, दो चीजें मेनली चाहिए आपको इन एल्कीन के केस में। इफ इट इज एल्कीन तो आपको दो चीज देखना है, दो चीज क्या, उसके बाद तो बस आप एक ही चीज देख लीजिए तो आंसर आ जाएगा आपको। आपको बस जीआई के लिए क्या देखना है, इफ इट इज एल्कीन आपको देख लेना एल्कीन है या नहीं है, ठीक है ना। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी एन एल्कीन। नेक्स्ट थिंग इज दैट जीआई के लिए टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट, क्या चाहिए आपको, टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल कार्बन, डबल बॉन्ड कार्बन है, दिस कार्बन शुड बी अटैच विद सम डिफरेंट ग्रुप्स ए एंड बी। ठीक है ना, इस कार्बन पे ए नहीं लगा हो, बी भी नहीं लगा हो, ए और कुछ बी लगा हो, इस कार्बन पे भी दो अलग ग्रुप लगे हो, ए एंड बी। सर ये तो सेम हो गया ए और बी, नहीं नहीं सेम नहीं हुआ। दिस कार्बन इज अटैच्ड विद टू डिफरेंट ग्रुप्स, अकेले में इसको नहीं देखना आप, यू डोंट हैव टू कंपेयर बोथ द कार्बन एटम्स, देन दिस कार्बन एटम शुड हैव टू डिफरेंट ग्रुप्स। गॉट दिस, यस और नो, प्लीज टेल मी, हाँ या ना, मेक सेंस, समझ में आया क्या बोले हम, हाउ टू आइडेंटिफाई जीआई, Yes, sir. ज्योमेट्रिकल आइस, है ना। यू हैव टू सी एल्कीन है या नहीं, एल्कीन है उसके बाद क्या देखिए, ये कार्बन एटम दो अलग ग्रुप से जुड़ा हो, देन यू सी दिस कार्बन एटम दो अलग ग्रुप से जुड़ा हो। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी गाइस। Yes, sir. ठीक है, अब सिस क्या है, अगर सेम ग्रुप सेम साइड हो, सेम ग्रुप्स आर ऑन सेम साइड। अब देखिए जब आप डिफरेंट देख रहे थे ना, तो इस कार्बन में देख रहे थे ऐसे करके, आधी बात समझ में आया ना। ठीक है, जब जीआई है या नहीं, वेदर इट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर और नॉट, वेदर इट कैन शो ज्योमेट्रिकल आइसोमर और नॉट, वेदर वी कैन यूज सिस और ट्रांस, इस चीज को वर्डिंग को हम लोग यूज कर सकते हैं या नहीं, ये देखने के लिए जो आपको ऐसे देखना है। बट सिस और ट्रांस में ना आप ऐसे लाइन बना दीजिएगा अराउंड द डबल बॉन्ड। ठीक है, सेम ग्रुप सेम साइड जैसे यहां पर है, तो ये हो जाएगा सिस। इफ यू हैव सेम ग्रुप ऑन डिफरेंट साइड, तो ये हो जाएगा ट्रांस। मेक सेंस, ये सुनो, तो ये तो जो हमने एग्जांपल लिखा है यहाँ पर, दिस इज फॉर सिस। और अगर हम ट्रांस के लिए लिखें, तो ये बना दिया आपने, सेम ग्रुप ऑन ऑन अपोजिट साइड, तो क्या हो गया, ट्रांस हो गया। मेक सेंस, यस और नो, प्लीज टेल मी, सिस और ट्रांस समझ में आया। Yes, sir. सबसे पहले थोड़ा सा एग्जांपल हम लोग कर लेते हैं। टर्मिनल वैलेंसी डिफरेंट याद रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन कर लेते हैं, आप लोग जवाब देते चलिएगा हमको।
ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोला जाता है, तो सेम थिंग। देखिए, एल्किन दिख गया? यस नो बोलते चलिएगा प्लीज, अगर समझना है तो फिर ठीक है ना। एल्किन मिला, एल्किन? Yes. ओके, जस्ट सेकंड। अब एल्कीन के दोनों कार्बन को देखो, इस कार्बन में कौन से ग्रुप्स हैं? दो अलग अलग ग्रुप लगे हुए हैं या सेम ग्रुप लगा हुआ है इसमें? व्हाट इज द ग्रुप अटैच्ड ऑन दिस कार्बन एटम? डबल बॉन्ड के अलावा क्या लगा हुआ है? अरे बोलो ना यार जल्दी, ये तो दिख रहा होगा ना। व्हाई यू गाइस टेक सो मच टाइम ऑन दिस? व्हाट आर द ग्रुप्स अटैच्ड ऑन दिस कार्बन एटम? नहीं पता किसी को? Yes. जोर से बोलिए जैनब। आई कांट Yes. हियर। व्हाट, सी एच? माइक ऑन करके बोलिए प्लीज, स्पेस बार दबा के मत बात कीजिए। हम्म, आपका माइक ऑन नहीं हो रहा लगता है। एनीवन एल्स? दिस कार्बन हैज व्हाट ग्रुप्स? यार ये तो आना चाहिए ना, कौन से ग्रुप? ये नहीं आ रहा क्या कौन से ग्रुप्स लगे हुए हैं? हद है भाई। ठीक है, आता यार, तुम लोगों को नहीं कुछ आ रहा तो हम क्या ही करें फिर। सुनो, दिस कार्बन इज हैविंग ओनली मिथाइल ग्रुप, दो CH3 लगा हुआ है, सेम ग्रुप लगा हुआ है। वी नीड डिफरेंट ग्रुप ऑन दिस कार्बन, डिफरेंट ग्रुप ऑन दिस कार्बन। इसमें तो सेम आ गया, तो दिस नॉट गोइंग टू शो GI। इसमें GI शो नहीं होगा। फिर यहाँ पर आइए, इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? दो हाइड्रोजन, सेम ग्रुप, नहीं होगा GI। इस कार्बन पे क्या लगा हुआ है? इट इज हैविंग वन बेंजीन एंड वन हाइड्रोजन, अलग हो गया, ठीक है। दिस कार्बन इट इज हैविंग वन हाइड्रोजन वन CH3, डिफरेंट, दोनों तरफ डिफरेंट है, तो ये GI शो करेगा। यहाँ पर देखिए, दिस कार्बन इट इज हैविंग वन मिथाइल ग्रुप वन हाइड्रोजन, डिफरेंट, ओके। नेक्स्ट, दिस कार्बन इज हैविंग वन क्लोरीन वन मिथाइल, डिफरेंट हो गया, करेक्ट। ये हो गया क्या? ये GI शो करेगा, सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो करेगा। अब अगला जरा देख लेते हैं हम लोग। नेमिंग में क्या, नेमिंग तो तुरंत आप लोग सिस ट्रांस कर सकते हैं, बहुत ही आसान होता है। सी, सिस ट्रांस शो करेगा कि नहीं? H और Cl दो अलग है, BR H दोनों अलग है, तो करेगा। तो सिस है या ट्रांस है? H एंड H सेम ग्रुप्स ऑन अपोजिट साइड, तो ट्रांस हो गया। बेंजीन रिंग, हाइड्रोजन, क्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्लोरीन और फ्लोरीन तो नहीं कर सकते। क्लोरीन एंड यहाँ पर हाइड्रोजन, सेम ग्रुप्स ऑन सेम साइड, तो सिस हो गया। दो ग्रुप भी हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर CH3 है, हियर ऑल्सो CH3, ठीक है। Even though the hydrogen is not shown here, but we know that here we have one hydrogen, here also we have one hydrogen. In this case, this is same group on the opposite side, so trans है। If I write the name, this is going to be trans 2 butene। इसका सिस फॉर्म भी होगा एक। This is cis 2 butene। What is इतना? आई थिंक काफी होगा। मेक सेंस, दिस मेक सेंस, yes or no, please tell me। Yes, sir. ठीक, इसमें जरा हम लोग कंपेयर कर लेते हैं जरा। वन थिंग वी नीड टू कंपेयर इज द polarity। If you look at the carbon atom here, this carbon it is sp3 and this carbon it is sp2। Since sp2 is going to be more electronegative because of higher percentage S character, the dipole moment will be like this, है ना? This is delta positive, this is delta negative। यहाँ पर आपके पास डाइपोल मोमेंट कैसा होगा? इस तरह का होगा, उल्टा, ऊपर की तरफ। You can see that the dipole moments in the trans form it is getting cancelled, so mu will be equal to 0। But in the cis form, you can see the dipole moment are going to get added। They're not in the opposite direction, they're in the same direction, which is below। तो एक नेट डाइपोल यहाँ पर होगा कुछ ऐसा।
So this is non-polar and this is polar. ठीक है. अब in this particular case, what is going to happen? As mu of cis form is greater, ये सिर्फ इसमें है, ब्यूट टू इन में. हमेशा ये सब जरूरी नहीं है कि म्यू जो है cis form का ही ज्यादा हो, है ना. You have to check always. Is as mu of cis form is greater, because then it will be more polar. So boiling point of cis butene या cis but 2ene will be more than trans but 2